خدا کے زندہ کلام میں سے انسان کی کتاب اس کا 31واں باب اور اس کی 26، 27 اور 28۔ اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں، اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے، وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی۔ اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں، اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے کہ وہ تیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی ہے، لیکن تو سب پر سبقت لے گئی۔ خدا اس اور آگے پھر ہم پڑھیں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔ ہم ہر ایک بات کے لیے میں نے جیسے پہلے کہا کہ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہمارا کلام جسے ہم پڑھ رہے ہیں، خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے، خدا اپنے کلام کی قدرت سے، خدا اپنے کلام سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ خدا اپنے کلام کی قدرت کو نازل فرما کر ہماری ساری کمی کمزوریوں کو دور کرتا ہے، اور خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ خدا چاہتا یہ ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، آمین۔ تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ انسان کی کتاب جسے حکمت کی کتاب کہا گیا ہے، جسے حکمت کی کتاب کہا گیا ہے، وہ کتاب ہمیں بتا رہی ہے، لکھا ہے اس کے منہ سے حکمت کی کیا نکلتی ہیں جی؟ اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں۔ حکمت کی باتیں مطلب اچھی باتیں، تسلی کی باتیں، ترقی کی باتیں، دانائی کی باتیں، بہتری کی باتیں، تربیت کی باتیں، بھلائی کی باتیں، جو باتیں ہمیں راہ، حق اور زندگی کے پاس لے جاتی ہیں جی، آمین۔ وہ ماں جو خداوند کے کلام پر عمل کرتی ہے، وہ ماں جو خداوند کے خوف میں رہتی ہے، وہ ماں جس کی پرورش خدا کے کلام کے مطابق ہوئی ہے، اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں، اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں۔ اس کی زبان پر شفقت کی کیا ہے جی؟ تعلیم ہے۔ اور کبھی میرے نال نہ رہنا کسی، اس کی زبان پر شفقت کی کیا ہے جی؟ اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی، اور پھر آگے دوسرا لفظ، اس کی زبان پر شفقت کی کیا ہے جی؟ شفقت کا مطلب دسنا ذرا اپنا آخر بھائی۔ محبت، بھلائی، رحم دلی، اچھا کسی کے لیے چاہنا، کبھی کسی کے لیے برا نہ چاہنا، شفقت کی تعلیم ہے جی۔ کون سی تعلیم ہے؟ اس کی زبان پر شفقت کی کیا ہے جی؟ تعلیم ہے۔ کیسی خوبصورت ماں ہے۔ میں ڈاکٹر زنک کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، تو ڈاکٹر زنک لکھتی ہے، کہتی ہے میں پیشے کے حساب سے ڈاکٹر ہوں، امریکہ کے اندر بہت بڑی ڈاکٹر، کہتی ہے لیکن مجھے یہ کتاب لکھنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ میں ایک خادم کی بیوی ہوں، اور میں نے خدا کے خادم کے ساتھ 30 سال زندگی گزاری ہے، اور کہہ رہی ہے میں نے وہ ہمیشہ خدمت کے لیے باہر چلے جاتے، خدمت باہر کرتے، خاندانوں میں، گھروں میں، لوگوں کے پاس، لیکن پیچھے میرے پاس ایک ذمہ داری تھی کہ میرے پاس 4 بچے تھے۔ کتنے جی؟ 4 بچے تھے۔ لیکن کہہ رہی خدا نے مجھے جب 4 بچے دیے تو میں نے کہا خداوند یہ بچے میرے بچے نہیں بلکہ تیرے بچے ہیں۔ تو کہہ رہی میں نے ان کی اس طرح سے تربیت کرنے کی کوشش کی، کہہ رہی میں یہ تو نہیں کہتی کہ میں نے ان کو بہت اچھا بنا دیا، لیکن میں خدا کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ میں ان 4 کو خدا کا خادم بنا دیا، آمین۔ کہہ رہی میں نے 4 کو خدا کا کیا بنا دیا؟ خادم۔ کہہ رہی میں ان کو تربیت کرتی رہتی تھی، روز دعا کرتی رہتی تھی کہ خداوند یہ تیرے خادم بن جائیں، یہ تجھے تیری پہچان میں بڑھنا شروع کر جائیں، یہ تجھے جاننا شروع کر دیں، جانے کہ تو راہ ہے، حق ہے اور زندگی ہے۔ کہہ رہی جڑی میرے گھر کی ڈیوٹی سی وہ میں وفاداری سے کرتی رہی، اور جو میرے ہسبینڈ جو خدا کا خادم ہے جو اس کی ڈیوٹی تھی وہ اچھے سے کرتا رہا۔ تو کہتی تھی میں خدا کی شکر گزاری کرتی ہوں، اور ان ماؤں کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ جن کو خدا نے بچے دیے ہیں وہ بھی ان کی تربیت ایسی کریں کہ وہ بھی خدا کو خادم اگر بن جاتے بڑی گل ہے،
कम से कम खुदा को जानने वाले बन जाएं, पहचान करने वाले बन जाएं। आमीन। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा का कलाम जो हमारी तरबियत करता संभालता है, उस लिखा है उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं, उसकी ज़ुबान पर शफ़क़त की तालीम है। और माँ, मैं कहता हूँ कि माँ जो बच्चों को करते हुए देखती है, क्योंकि माँ ज़्यादा टाइम बच्चों के साथ रहती है, तो माँ को जो बच्चे करते हुए देखते हैं उसके किरदार से कि हमारी माँ करती क्या है, तो बच्चों के अंदर ऑटोमेटिकली चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए जितनी माएँ बैठी हैं, मैं उनसे सबसे मेरी हम्बली दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि घर के अंदर एक मस्बा बना लें, घर के अंदर एक मस्बा, एक जगह ऐसी बना लें जिस पे वो टाइम, सुबह अगर नहीं मिलता, दोपहर अगर नहीं मिलता, शाम कोई टाइम ऐसा है कि निकाल लें। वैसे तो 3 टाइम से रोटी खाने हैं तो कम से कम कोशिश करें 3 टाइम बना लें। अगर 3 टाइम नहीं बना सकते, ड्यूटी पे हैं, कहीं बिजी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एक टाइम शाम का टाइम कम से कम सोने से पहले दुआ करके, गीत गा के और उनको खुदा के सुपुर्द करके आप सो जाए। डॉक्टर जिंग ने भी यही कहा, कह रही मैं उनको खुदा के सुपुर्द करके सो जाती, और कहती मैं उनके साथ सोने से पहले टाइम थोड़ा सा स्पेंड करती, नींद गुजारती, मैं उन्हें गीत सुनाती, फिर यस्सु की कहानी सुनाती कि यस्सु इसलिए ज़मीन पर आया, यस्सु ये था, यस्सु क्यों आया, तो मैं उनको कोई ना कोई स्टोरी सुना के फिर उन्हें सुला देती। आजकल की माओं को टाइम ही नहीं है, बिजी ने, कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई पता नहीं कितने कितने कोई है ही नहीं। तो इसलिए जब हम बच्चों को टाइम नहीं देते तो हमारे बच्चे फिर गुमराह हो जाते हैं, खुदा से दूर हो जाते हैं। तो इसलिए मेरी माओं से रिक्वेस्ट है, एक मस्बा बना लें घर के अंदर, कम से कम शाम को सोने से, रात को सोने से पहले एक गीत घर में गा के उनको सुना दिया जाए, दुआ करना उनको सिखाई जाए कि दुआ क्यों करनी ज़रूरी है और दुआ क्यों करनी चाहिए, ये तरबियत है। और मैं कहता हूँ कि डंडा इतने मारने, जहाँ डंडा मारने की जरूरत है वो डंडा भी मारना चाहिए। कलाम में लिखा है, इंसानी की किताब में लिखा है, अगर तो अपने बेटे को छड़ी से मारेगा तो वो मर ना जाएगा, लेकिन जिस राह पर तो उसकी तरबियत करेगा वो बूढ़ा होकर भी उससे मुड़ेगा नहीं। इंसान की किताबें में बता दिया। तो जहाँ डंडा मारने की जरूरत है, सख्ती करने की जरूरत है, करनी भी चाहिए, लेकिन ज्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे किरदार से बदल जाए, हमारे जो कुछ हम करते हैं हमारे एक्ट से बच्चे बदल जाए। ज्यादा अच्छी बात तो यही है। अगर थोड़ा साडा एक्टेड चंगे नहीं होंगे तो फिर सानू थोड़ा ज्यादा डंडा मारने की जरूरत है, पहले सानू मार अपने आप को खाने की जरूरत है ना, तो पहले असी को डंडा खा ले। सो मैं बताना चाहता हूँ कि उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं, उसकी जुबान पर शफ़क़त की तालीम है, वो अपने घराने पर क्या रखती है जी, बाखूबी निगाह रखती है। कैसे रखती है जी, बाखूबी निगाह रखती है। बाखूबी का लफ्ज बड़ा गहरा लफ्ज है शोएब भाई, बाखूबी का लफ्ज बड़ा गहरा लफ्ज है। बाखूबी का मतलब कि बड़ा डीपली जाके, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी शफकत के साथ उसे अपनी फैमिली की फिक्र है, उसे अपने खानदान की फिक्र है, उसे अपने बच्चों की फिक्र है, उसे अपने शौहर की फिक्र है, बड़ी डीपली बाखूबी। ये लिखा है वो अपने घराने पर बाखूबी निगाह रखती है। और क्या लिखा है जी, पढ़िएगा जरा, कायली की रोटी, कायली का मतलब दसना जरा, सुस्ती की, सुस्ती का दिन चला जी मैं बड़ा काम की तरह थक गई, सौ जो सुबह देखा, वो कायली की रोटी नहीं खाती, वो कायली की रोटी नहीं। तो इसलिए मेरी दुआ है कि खुदावंद ऐसे खानदान, ऐसी माएँ पैदा करे कि जो अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि वो बूढ़े होकर भी खुदा के कलाम से ना हटे। आमीन। इसलिए लिखा है वो कायली की रोटी नहीं खाती। जब वो कायली की रोटी नहीं खाती, जब अपने घराने पर बाखूबी नजर रखती है, उसकी जुबान शफकत की तालीम देती है, हिकमत की बातें उसके अंदर से निकलती हैं, तो जब ये सारा कुछ वो करती है, अपने घराने के लिए बाखूबी नजर रखती है, शफकत की तालीम देती है, हिकमत की बातें उसके मुंह से निकलती हैं, तो लिखा है आगे वाली आयत में बताती है, उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं। आमीन। सारे कहें आमीन, सारे जोर से कहें आमीन। मुबारक क्यों उसके बेटे उसे कह रहे हैं?
क्यों कह रहे हैं? मैंने पहले 4 खूबियां बताई, बाइबल बता रही है। उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं, उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं, उसकी जुबान पर शफकत की तालीम है, वो अपने घराने पर बखूबी निगाह रखती है और कायली की रोटी नहीं खाती। जब ये सारा कुछ करती है तो कलाम हमें बता रहा है, कलाम में लिखा है, उसके बेटे उठते हैं और उससे क्या कहते हैं जी? मुबारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मुबारक कहते हैं। और अगे वाली आयत जेडी बड़े घट लोग आते हैं, आखिर में पढ़ना था। उसका शौहर भी उसकी तारीफ, उसका शौहर भी उसकी तारीफ करता है। आमीन। मैंने कहा जैसे बड़े चोर ने जड़े तारीफ कर, लेकिन यहां लिखा है जिस औरत के अंदर ये खूबियां पाई जाती हैं उसके बेटे भी उसे मुबारक कहते हैं और उसका शौहर भी उसे मुबारक कहता है, उसकी तारीफ करता है। उसकी क्या करता है जी? तारीफ। क्योंकि जब शौहर देखता है कि मेरी वाइफ जो मेरी पार्टनर है, जो खुदा ने मुझे दी है, कलाम कहता है जैसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। एक बड़ा पाक सेटलमेंट है, एक मुकद्दस रिश्ता है। इस रिश्ते की असल में हमें अहमियत ही भूल गई। इस रिश्ते की, अरे ये रिश्ता खुदा ने जोड़ा है और लिखा है कलाम में जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। और ये मुकद्दस रिश्ता है जो सबसे पहले बाग-ए-अदन में खुदा ने आदम और हवा का रिश्ता जोड़ा। सबसे पहला निकाह खुदा ने खुद आदम का और हवा का बाग-ए-अदन में किया और फिर उन्हें बरकत दी, कहा बढ़ो फलो और फूलो और इस जमीन को क्या करो? यस। तो इसलिए ये मुकद्दस रिश्ता है, ये पाक रिश्ता है, इसके अंदर नापाकी नहीं आनी चाहिए, इसके अंदर दरार नहीं आनी चाहिए। ये मुकद्दस रिश्ता जिसका गवाह खुद खुदा है, जिसे खुद खुदा ने बांधा है, उसकी इज्जत भी हमें वैसे ही करते रहना चाहिए। हमें तो जब ऐसा करेंगे तो फिर उसका शौहर भी मेरा बाजी क्या कहेगा? उसकी तारीफ करेगा। डेविड भाई, फिर उसका शौहर भी उसकी तारीफ करेगा। तो उसी जो अच्छा काम होते तारीफ असी करनी। यस। तो उसके बेटे उठते हैं और उसे क्या कहते हैं जी? उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं। क्या क्या कमाल की बात है जी, क्या खूबसूरत कलाम है एक माँ के लिए कि जिसके बेटे भी उसे मुबारक कहते हैं और उसका शौहर भी उसकी तारीफ करता है। झूठी मुठी दी नहीं, जो तो सच्चा होएगा तो तारीफ अंदरों निकली, काम जो तो सही होंगे तो फिर गल सही बनी। आर यू एग्री? सो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब हम इस तरह करेंगे, खुदा के खौफ में रहेंगे, तो फिर हम खुदा के जलाल को देखेंगे। तो इसलिए मेरी माँ से रिक्वेस्ट है कि इस तरह से खुदा हमें तौफीक दे, जब हम खुदा के हुजूर झुकेंगी, दुआ करेंगी, अपने बच्चों की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करेंगे, तो खुदा हमें बरकत देगा। फिर हमारे बेटे भी हमें मुबारक कहेंगे और हमारा शौहर भी हमारी क्या करेगा जी? तारीफ करेगा। तो इसलिए खुदा उनका कलाम हमारी तरबियत करता है और हमें सिखाता है। आगे वाली आयत 29 पढ़े अपना आखिर भाई। कि बतेरी बेटियों ने फजीलत दिखाई है। कि बतेरी बेटियों ने क्या दिखाई है जी? फजीलत दिखाई है। बतेरी बेटियों ने फजीलत दिखाई है। आगे, लेकिन तू सब पर सबकत ले गई। सबकत का मीनिंग जरा जोर से बताएं क्या है अपना आखिर भाई? अव्वल दर्जा, सब पर नंबर ले, सब पर उतरे नंबर, नंबर 1। कौन सा नंबर? नंबर 1। तेरा इसलिए तू नंबर 1 क्योंकि तेरे बेटे तेरी तारीफ करते हैं, तेरा शौहर तेरी तारीफ करता है, तेरे बेटे तुझे मुबारक कहते हैं। क्यों? कि तू हिकमत की बातें करती है, तेरी जुबान पर शफकत की तालीम है,
और तू काली की रोटी नहीं खाती, और तू अपने घराने पर बखूबी निगाह रखती है, तू अपने घराने की फिक्र करती है, तू अपने घराने के लिए खुदा के हुजूर रखना में खड़ी होती है, दुआ करती है कि मेरा घराना, मेरे बेटे और बेटियां खुदा को जानना शुरू कर दें। आमीन। इसलिए उसके बेटे उसे मुबारक कहते हैं और उसका शौहर उसकी तारीफ करता है, उसका शौहर उसकी प्रेज़ लॉर्ड। अक्सर बाजी, उसका शौहर उसकी क्या करता है? तारीफ करता है। इसलिए खुदा का कलाम हर एक बात में हमारी तरबियत करता है, हमें सिखाता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, खुदा ने क्यों हमें भेजा है इस दुनिया में। तो माँ का बड़ा किरदार है, ऐसी माँ जो जिसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं, उसकी जुबान पर शफ़क़त की तालीम है, वो अपने घराने पर बखूबी निगाह रखती है और काली की रोटी नहीं खाती। बथेरी बेटियों ने फजीलत दिखाई, कहते बथेरी बेटियों ने फजीलत दिखाई, लेकिन ऐसा करने वाली, खुदा के कलाम पर अमल करने वाली शफ़क़त ले गई पहला नंबर ले। आमीन। पहला नंबर मिले तो कैसी खुशी होगी। अपना टीचर सारे बैठे ने दसो पहला नंबर जो बच्चा लेता है तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। पहला नंबर ले लिया उस औरत ने जिसके अंदर खुदा के कलाम की बातें हैं, हिकमत की बातें हैं, शफ़क़त की बातें हैं, जो अपने घराने पर बखूबी निगाह रखती है, कायले की रोटी नहीं खाती, सुस्त नहीं होना। पहला हमेशा सुस्त सिर बांध के भैया नहीं है, टिल्ले नहीं होना, नो टिल्ले। यही कलाम कह रहा है, वो कायले की रोटी छाड़ दो, सुस्ती सुस्ती सारी, शाना में शाना खड़े हो जाए, क्योंकि खुदा ने जब पहला जोड़ा बनाया तो हवा को पास लाके क्या कहा, ये तेरी क्या है? मददगार है। तेरी क्या है जी? मददगार बनना है, अफसर नहीं बनना। की बनना है? मददगार। असि अफसर बन जाने हैं ना, मेरा क्या बनना है? मददगार। यस, खुदा ने ये कहा है, खुदा का कलाम हमें बताता है कि उसने कहा मुझे, मैंने निगाह की, कोई तेरी मां ने तेरे हर पर तेरा ख्याल करने वाला ना मिला, मैंने अब तेरी हड्डियों में से हड्डी, तेरी गोश्त में से गोश्त निकाल कर तेरी मां, तेरा मददगार तुझे दे दिया। मददगार बीवी क्या है जी? मददगार है। तो जिस घर के अंदर, जिस घराने के अंदर बीवी मददगार बनती है, साथ मदद करती है, वो घराना खुदावंद का घराना कहलाता है। तो जितने अफसर बांध दिए, जितने अफसर बांध दिए, वो कितना घराना कहलाता है? वो शैतान का कहलाता है, क्योंकि असि उल्टा चाहते हैं ना। खुदा ने कहा तूने यदि मदद करनी है तो अफसर बन बैठी है। कलाम कहता है मदद कर, वो कहती नहीं मैं अफसर। शैतान यही तो काम करता है, वो अफसर बनाता है। हमें खादम बनना अच्छा ही नहीं लगता, खिदमत करना अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन खुदा कहता है, खुदा का कलाम हमारी ये तरबियत करता है कि अगर तू बड़ा बनना चाहता है, अगर तू बड़ा होना चाहता है, तो पहले खादम की सूरत को इख्तियार कर ले, छोटा बन जा। ये भेद है बहुत बड़ा, हम पहले छोटा बनना ही नहीं चाहते। मैंने शुरू से कलाम को मैं बड़ा पढ़ता था, राती जब तक पढ़ के नहीं सोता, जवानी के अंदर भी तो मुझे नींद नहीं आती थी, डेली दुआ करके सोना, कलाम पढ़ के सोना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब चर्च में जाता था, नीचे बैठ बैठ के मैंने खादमों को सुना है। बड़े खादम जब भी कहीं से, छोटा खादम कोई भी आता, जरूर बच्चों को भी लेके जाता, खुद भी पीछे बैठ के चुपके से कहीं कोने में बैठ के सुनने जाता कलाम को, कभी सुनने के लिए। लेकिन जब सुनने के लिए मैं जाता, खुदा को समझने, कलाम को समझने के लिए जाता, तो खुदा से जब हम मोहब्बत करते हैं, अपने आप को पीछे कोने में बिठा के छोटा जाहिर करते हैं, तो खुदा ऑटोमेटिकली बड़ा बनाता है। आमीन। खुदा ऑटोमेटिकली बड़ा बना। तो अगर मैं पहले ही आके इतने बह जाऊँ तो कोई आगे कभी जरा तो उछा हुआ है, तुझे उत्थे बह जाओ, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। तो जब खुदा कहे
کہ تو پہلے چھوٹا بن جا, جب میں تجھے بڑا بناؤں تو میں تیری انگلی کو پکڑ کر لا کر تجھے خود یہاں بچاؤں گا. تو وہ عزت والی بات ہوگی نا. تو کون سی بات ہوگی جی؟ عزت والی بات. تو اس لیے ہمیں پہلے پیچھے بیٹھنے کی, نیچے بیٹھنے کی ضرورت ہے اگر ہم بڑا بننا چاہتے ہیں. آمین. تو اس لیے کلام ہمیں سکھاتا ہے ماں کیسے ہونی چاہیے, بیوی کیسی ہونی چاہیے, مدد کر. یاد رکھ لو, لکھ لو, اپنے کو نوٹ کر لو. جتنی مائیں, جتنی میری بہنیں بیٹھی ہیں وہ کیا ہونی چاہیے, مددگار ہونی چاہیے. یہ کلام ہمیں سکھاتا ہے. اور اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے, اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے. وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی. اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں. اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے کہ وہ تیری بیٹی نے شفقت دکھائی لیکن تو سب پر کیا لے گئی, تو سب فضیلت دکھائی لیکن تو سب پر شفقت لے گئی. باقی چیزیں یہ سب نیچے پڑھے. حسن, دھوکا اور جمال کیا ہے جی؟ پڑھیے گا ذرا اپنا آخر بھائی اس کو. حسن, دھوکا اور جمال بے ثبات. سنیں جی کیا لکھا ہے کلام, کیا ہمیں سکھا رہا ہے. ہمیں بہت سی چیزوں پر گمان ہوتا ہے, دولت پر, حسن پر, دنیا کی ان چیزوں پر ہم کیا کرتے ہیں. لیکن کیا لکھا ہے یہاں, حکمت کی کتاب بائبل ہمیں کیا, امثال کی کتاب کیا لیسن دے رہی ہے. حسن کیا ہے جی, حسن کیا ہے جی, زور دی کہو ذرا, حسن کیا ہے. انی بھائی پھر پاویں جنیا مرضی کریمہ کو نہ ملاؤ, حسن دیکھ لو کہہ لینا. حسن کیا ہے, پھر آتی رہا کہ سو پھر صبح اٹھ کے لاؤ, پتہ نہیں کدو کدی کیڑی کیڑی کریم لاندے نے لوگ. او مائی گاڈ. اگر آپ کے اندر خدا کی حکمت آ گئی, صداقت آ گئی, خدا کا خوف آ گیا, آپ کا چہرہ آٹومیٹکلی روشن ہو جائے گا. آمین. پھر کسی کریم کی لوڑ نہیں پائے گی, پھر اتر کریمہ لگن لگ جائیں. خدا کا بندہ موسیٰ 40 دن اور 40 رات جب پہاڑ پر دعا اور روزے میں رہا, تو جب وہ نیچے اترا تو کلام بتاتا ہے اس کے چہرے پہ کوئی نگاہ نہ کر سکا. اس کے چہرے پر کوئی نگاہ ہی نہ کر سکا. ایسے چمکدار روشن چہرہ اس کا ہو گیا, اتنا جلال والا چہرہ اس کا ہو گیا کہ کوئی اس پر نگاہ ہی نہ کر سکا. تو پھر کو کریمہ دی لوڑ نہیں بھائی پائے گی. نو نتھنگ. پھر آپ کو خداون اپنے جمال سے, اپنے جلال سے خود روشن کر دے گا. آمین آمین. تو لکھا ہے اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں, اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے, وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے اور کاہلی کی روٹی. حسن, دھوکا اور جمال کیا پڑھا ہم نے اپنا تبھی زور نہ پھر پڑھو. حسن, دھوکا اور جمال بے ثبات ہے. بے ثبات ہے, اس کا مطلب بھی دسو گا. عارضی ہے, یہ عارضی ہے. یہ اصل میں بتانا چاہ رہا ہوں, یہ کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا, یہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہے. یہ تھوڑے ٹائم میں چیسی کیا کر دیتے ہیں, ٹریک سے اتر جاتے ہیں. جوانی اور یہ حسن تھوڑے ٹائم کے لیے ہے جی, لیکن جو چیزیں ہمیشہ کے لیے ہیں ہم نے ان کے لیے زور مارنا ہے. تو اس لیے حکمت کی کتاب ہمیں یہی بتا رہی ہے. آگے والی آیت پڑھیں. لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے. کیا خوبصورت بات ہے جی, سنیں. لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے ہوگی. کیا ہوگی جی, کیا ہوگی. پہنا ساری طرح پہنا زور نہ کرو. کیا ہوگی, اسودہ کا مطلب دسو جی, کیا ہوگا. نہیں سمجھ آئی, دوبارہ دسیں. آرام پائیں گی. کیا پائیں گی, سب نے سمجھ کلیئر. وہ کیا پائیں گی, آرام پائیں گی. لیکن کیسے, جو خدا سے ڈرتی ہیں. جو خدا سے جی ڈرتی نہیں ہو تو پھر آپ ہی اپنے لوگوں نے ڈرا دیا نا, سب وہ تو آپ ہی ڈرا رہی ہوتی ہیں. اور میں تھانوں کی پتہ, میں تو ایسی تو میں تو ویسی, میں تسی تھانوں کی پتہ ہے, میں تو سارا کچھ خود جانتی. او یس. تو جو خدا سے ڈرتی ہے وہ کیا کرتی ہے, کیا کرتی ہے, آرام پاتی ہے. وہ کیا پاتی ہے, آرام پاتی. اس یہی کلام میں سکھا رہا ہے. آگے جی, آگے والی آیت 21ویں پڑھے. اس کی محبت کا اجر اسے
दो। पढ़े जरा अख्तर भाई जोर से ऊंची पढ़े। मेहनत का अजर उसकी मेहनत का अजर उसे दो। उसकी मेहनत का अजर उसे दो। जो मेहनत कर रही है, इतना काम अपनी फैमिली के लिए, खानदान के लिए, खुदा के लिए वो कर रही है कि अपने खानदान को खुदा की तरफ राग़िब कर रही है, इतनी मेहनत वो करती है, इतनी मोहब्बत से वो सारी चीजों कर रही है, तो फिर उसका अजर उसको देना चाहिए या नहीं? देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? इसलिए कलाम कहता है उसके कामों से मजलिस में उसकी क्या करो जी? सताइश, तारीफ करो। क्या करें जी? तारीफ। आखिर भाई करते हो तुसी करनी चाहिए। यस अल्टर साहब तुसी भी करनी, ठीक है। हाँ डेविड भाई आज विद में, ठीक है ना? तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। उसकी किसका अजर देना है जी? उसकी मेहनत का अजर। किसका जी? जोर से बोले, किसका? मेहनत का अजर उसे दो। कलाम कह रहा है और उसके कामों से मजलिस में उसकी क्या करो? सताइश करो। ये कलाम हमें ये तरबियत देता है ऐसी माओं की कि हमें तारीफ करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मजलिस में बताना चाहिए कि मेरी माँ ने मेरी तरबियत किया है खुदा के कलाम के मुताबिक, मेरी माँ ने मुझे कलाम के मुताबिक सिखाया है, समझाया है, बताया है, और वो आपके किरदार से सारी चीजें नजर आएंगी। इससे बड़ा और कोई काम नहीं जी। दुनिया की सारी चीजें वक्ती हैं, दौलत है, हुस्न है, ये चीजें हैं जो वक्ती बिल्डिंगें आपको नजर आ रही हैं, ये थोड़े टाइम के लिए हैं, यीशु आने वाला है, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो जो हमेशा कायम रहने वाली चीज है खुदा की बादशाही, खुदा यीशु मसीह की हजूरी, उसके लिए और हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमें जोर मारना चाहिए और ये अपने बच्चों को तालीम देनी चाहिए। और बहुत से ऐसे माओं के रेफरेंस हैं, हवाले हैं, जैसे दूसरा तिमोथियस अगर हम पढ़ें तो उसमें हमें तिमोथियस की नानी का जिक्र मिलता है, उसकी माँ का जिक्र मिलता है। वो बड़ी ईमानदार थी और किस तरह से उन्होंने तिमोथियस की परवरिश की कि वो ऐसा ईमानदार बना कि पौलुस रसूल के साथ मिलकर उसने बड़ी खिदमत की है। तो उसका हमें जिक्र मिलता है। अब टाइम नहीं कितने हवाले खोल लेकिन उसका नोट कर लें। दूसरा तिमोथियस उसका पहला बाब 5 आयत अगर पढ़ें तो उसमें उसका जिक्र मिलता है। फिर अगर हम इस्तिश्ना की किताब पढ़ें तो उसमें हमें जिक्र मिलता है कि हमने बच्चों की तरबियत किस तरह से करनी है। इस हवाले को पढ़ लेते हैं। इस्तिश्ना 6-7 खोलिएगा जरा अपना आप भाई, पुराने अहदनामा में से कुछ हवाले आप नोट कर लें, घर जाकर उनको पढ़ लीजिएगा। मैं आगे जाकर हवाले बताऊंगा आपको। इस्तिश्ना 6 बाब और उसकी 7 आयत। इस्तिश्ना की किताब उसका 6 बाब और उसकी 6 और 7 आयत। आतिफ भाई के साथ, आतिफ भाई मिल गया? 6 बाब और उसकी 7वीं आयत से, या बल्कि 6 से पढ़े। और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ, तेरे दिल पर नक्श रहे, तेरे दिल पर क्या रहे जी? नक्श रहे, और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना। कलाम हमें बता रहा है कि जो आज के दिन मैं तुझे हुक्म देता हूं, जो कलाम के मुताबिक मैं तुझे सिखाता हूं, ये बातें तेरे जहन नशीन रहे, और तू क्या करना? अपनी औलाद को उनके जहन नशीन करना। और आगे, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। कितनी दफा लेके आसी थे? मैं एक ही दफा के आसी लेके देते थे, कितनी दफा लेके तभी पढ़ना दोबारा, कितनी दफा? और घर बैठे और राह चलते। सुने जी, नंबर 1 घर बैठे, राह चलते, लेटते, उठते, इनका जिक्र करना। 4 दफा का जिक्र इधर। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर वो बाकी टाइम नहीं करते तो कम से कम जब सोन लगे हो उधर दस दो, ताकि पूरी रात उनके अंदर कलाम 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 ही चलता रहे। आमीन। तो इसलिए लिखा है और उनको तो अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, और घर बैठे
और राह चलते जब भी आप रास्ते में हो तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते रहा करें कि खुदा उन सारे सफर के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे हाथों में इन सारी चीजों को सौंपते हैं। और फिर लेटते और लेटते हुए भी और फिर उठते हुए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करना है। ये अपनी औलाद के क्या करना है कि तुमने ज़हन नशीन कर देनी है, बातें ज़हन नशीन कर देनी है। आगे और चलते लेटते और वक्त जिक्र किया करना। और तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बंध लेना। असी बंदे नहीं कभी कलाम, असी ने कलाम सानू आप बंद मुल ले, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, देखें पढ़े। और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानद हो ऐसा कलाम, ऐसा किरदार, ऐसी हिकमत की बातें, ऐसी दनाई की बातें कलाम आपके अंदर से, आपके ऊपर से, जहन से, आपके माथे से ऐसा जाहिर होता रहे, आपके किरदार से, कि लोग जाने कि खुदा का कलाम इनके अंदर है जी। इसलिए खुदा के कलाम में से हम सीख रहे हैं कि अपनी लिखा है और तो उनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना। औलाद के क्या करने जी हमने ज़हन नशीन करनी है। ये बातें कलाम की बातें उनके ज़हन के अंदर डाल देनी है कि वो बूढ़े होकर भी उस राह से ना मुड़े। इवन के यहाँ तक कोई उनके ऊपर तलवार भी रख दे तो वो कहे यीशु राह है, यीशु हक है, ये जान उसी की है, ये जान उसके लिए भी कुर्बान है। इतना हिकमत, इतनी दनाई, इतना जोश आपके अंदर भर जाए कि मसीह हमेशा की जिंदगी तो उसके पास है, उसके बगैर मुझे कोई जिंदगी दे सकता नहीं। इसलिए तो उनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त उनका जिक्र किया करना, जिक्र किया। तो इसलिए हमें कलाम का हर वक्त जिक्र करना है, अपने बच्चों को ये तरबियत देनी है, बताना है। ये एक वाक़या जी माँ की किस तरह माँ बाप को अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए, ये हमने सीखा है। फिर अगर क़ज़ात की किताब पढ़ें तो उसमें दिबोरा का वाक़या हम पढ़ते हैं। वो भी एक माँ है, तो उसके लिए लिखा है वो माँ बनकर उठी। वो क्या बनकर उठी जी? माँ बनकर उठी। क़ज़ात 22वां बाब और उसकी 6 आयत लिखा है कि जब इस्राएल के अंदर हाकम या दानिश्वर लोगों की कमी हो गई और इस्राएल जंगें हारने लगा, पस्तहाली में चला गया, गुमराही में चला गया, सारे बादशाह गुमराह हो गए, तो दबूरा मां बनकर उठी। दबूरा मां बनकर उठी। ये हवाला पढ़ लेते हैं, निकालें अपना अर्थ भाई। क़ज़ात 5:7 क़ज़ात की किताब है, उसका 5वां बाब और 7वीं आयत। ओह माय गॉड जीसस, खुदावंद तेरा शुक्र। जी प्लीज। इस्राएल में हाकिम मौकूफ रहे, इस्राएल में हाकिम मौकूफ हो गए, वो मौकूफ रहे जब तक कि मैं दबूरा बर्पा ना हुई। जब उसने देखा कि हाकिम मौकूफ हो गए हैं, हमारी कौम बदहाली में चली गई है, हमारी कौम के अंदर बेदारी नहीं है, हमारी कौम के अंदर, हमारी माओं के अंदर, हमारे घरानों के अंदर दुआ नहीं रही, तो दबूरा कहती है मुझे ये होश आया और मैं मां बनकर उठी, और मैं मां बनकर उठी। जी आगे। जब तक कि मैं इस्राएल में मां होकर ना उठी। तो माँ का ये दर्द होता है जी, माँ का ये दर्द होता है कि जब उसका घराना, उसका मुल्क, उसका शहर, उसका चर्च दुआ से दूर हो जाए, बेदार ना हो, तो माँ बनकर वो कहती है मैं उठी और फिर मैंने जोर मारा और अपने लोगों को खुदा से जोर लेकर दिया और वो फिर से मुल्क और हमारे कौम बेदार हो गई। आमीन। तो माँ बनकर उठने का ये है माँ। तो बुरा का जिक्र किया। फिर अगर
हम शमूएल में की किताब पढ़े, पहला शमूएल पहले बाब की 20 आयत में हन्ना का जिक्र मिलता है। किसका जिक्र मिलता है जी? हन्ना का जिक्र मिलता है। हन्ना के यहाँ आपने वाक्य सुना होगा, औलाद नहीं थी। हन्ना के यहाँ औलाद नहीं थे। जिधर को ना होवे तो उसको बड़ी बातें लोग करते हैं। जहाँ का एक रीत ही ऐसी है, ये दुनिया है ही बड़ी सख्त, दुनिया है ही ऐसी है। हमें ऐसा कहने की कुछ भी जरूरत है, क्योंकि ये खुदा का मामला होता है। ये किसका मामला होता है जी? खुदा का मामला होता है। तो अगर हम कुछ कहते हैं तो इट मीन कि हम खुदा के मामलात में इंटरफेरेंस करते हैं, खुदा के मामलात में मुदाखलत करते हैं, हम खुदा से बड़ा बनने की कोशिश करते हैं। इसलिए बल्कि दुआ करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए जी? तो हन्ना के पास कोई औलाद नहीं थी, तो हन्ना ने कहा, वो आंसुओं से रोती है, दुआ करती है, खादमों के पास हैकल में जाती है और कहती है कि मुझे औलाद चाहिए, मैं दाना जनी का शिकार हूं, मेरे ऊपर ताने कसे जाते हैं, खुदा मुझे औलाद दे, मुझे औलाद चाहिए। लेकिन उसे औलाद नहीं मिल रही। वो अपने लिए औलाद मांग रही है, वो अपने लिए, लेकिन खुदा की मर्जी कुछ और है। खुदा की मर्जी कुछ और है। जब वो हन्ना और खुदा दोनों एक पेज में हुए, एक सोच हुए, उसने कहा खुदा अब जो तू औलाद देगा मैं तुझे ही दे दूंगी। सुने मेरी बात, हन्ना को जब ये बात समझ आई, अपने लिए पहले औलाद मांग रही थी, मुझे औलाद चाहिए, मुझे औलाद चाहिए, मैं तानाज़नी का शिकार हूं, मुझ पर जुल्म हो रहा है, मुझे औलाद चाहिए, क्योंकि अपने तानों से बचना चाहती है। लेकिन जब उस पर खुदा का कलाम खुला, मुकाशफा खुला, तो उसने कहा खुदा तू जो औलाद मुझे देगा वो मैं तुझे ही दे दूंगी। आमीन। तो उसको खुदा ने बेटा बख्शा, शमूएल, जिसने 2 बादशाहों को मसा किया, जिसने जब उसने कहा कि खुदा तू जो मुझे औलाद देगा वो मैं तुझे दे दूंगी, तेरी नजर कर दूंगी। खुदा ये चाहता है कि तेरे रहम से मेरे लिए औलाद पैदा हो। आमीन, आमीन। खुदा ये चाहता है कि तेरे रहम, तेरे पेट में से मेरा नबी बर्पा हो। और तू कहने मैनू औलाद दे, मैनू औलाद दे। तो जब उसने कहा मुझे खुदा तेरे लिए चाहिए, तो फिर बाद में आगे जाके पढ़े, खुदा ने उसे 3 बेटे कहा, तूने मुझे एक दिया है, अल्लाह तेरे वास्ते, तूने मुझे एक दे दिया है, अब 3 तेरे लिए। कलाम में पढ़े, ये लिखा। असल में हमें खुदा के मुकाशफों को समझने की जरूरत है, खुदा के साथ चलने की जरूरत है। वो माए जो खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करती हैं, जो खुदा के कलाम के मुताबिक चलती हैं, उन पर आसमान खुलता है और वो खुदा की बादशाहत के लिए काम करती हैं। जब शमूएल पैदा हुआ तो वो शमूएल को खुदा के घर में छट आई। आमीन जी। सारा बाजी, अक्सर बाजी, किसको कहां छोड़ाई? खुदा के घर में छोड़ाई शमूएल को। और शमूएल ने 2 नबियों को, 2 बादशाहों को मसा किया। इतना रुतबा शमूएल को खुदा ने दिया। और शमूएल कहते हैं, शमूएल की किताब बताती है, लिखा है कि खुदा अपने खादमों की किसी बात को भी मिट्टी में मिलने, सारे मेरे साथ कहें, खुदा अपने खादमों की किसी बात को भी मिट्टी में मिलने, वो अपने खादमों का खुद जोर बनाता है। आमीन। ऐसी औलाद देर हो सवेर हो, उसका सबब यह है कि खुदा अपने लिए नबी चाहता है। खुदा अपने लिए अपना बंदा इस हन्ना के पेट से अपने लिए औलाद चाहता है। आमीन। इसी तरह अलीशबा का वाकया, अलीशबा से पता कौन पैदा हुआ था? किसी कोई बताए जी? नसरीन, यूहन्ना अज़दवागी, वो भी बड़े बाद में लेट पैदा हुआ। फरिश्ते ने आकर जब ज़िक्रिया को यह खुशखबरी दी कि तेरे यहां बेटा पैदा होगा, तो ज़िक्रिया कहता है मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी बीवी इतनी बूढ़ी हो चुकी है, अब हमारे यहां औलाद कैसे हो सकती है? उसने कहा मैं जब्राईल हूं और खुदा की तरफ से यह पैगाम तेरे लिए लेकर आया हूं कि तेरे यहां बेटा होगा। आमीन, आमीन। तो यूहन्ना ने शक किया। यूहन्ना ने क्या किया? उसकी जुबान 6 महीने वास्ते बंद कर दी।
उसने कहा तूने खुदा की बात का क्या नहीं किया, इत्तबार नहीं किया, शक किया है। अब जब तक बेटा थोड़ा जब बड़ा नहीं हो जाएगा तेरी जुबान चिपकी रहेगी। मरियम ने देखो, मरियम के पास जब फरिश्ता आया तो मरियम क्या कहती है, देखे मां, मरियम के पास जब फरिश्ता आया तो ऐ मरियम सलाम, तुझ पर फजल हुआ है। तो उसने शक किया, उसने कहा तेरे कौल के मुआफिक हो। आमीन आमीन। उसने यीशु मसीह को जन्म दिया। आमीन। तो देर जब होती है ना तो फिर कोई बड़ा काम असल च खुदा चाह रहा होता है। आमीन। फिर खुदा क्या चाह रहा होता है, वो बड़ा काम चाह रहा होता है। वो दिखाना ये चाहता है कि जहां से इंसान की उम्मीद खत्म होती है, जहां से इंसान अपनी हिम्मत हार जाता है, वहां खुदाबंदी शुरू होती है। आमीन। तो इसलिए हमारा खुदा नामुमकिनात का खुदा है। वो नामुमकिनात को मुमकिनात में बदलने की कुदरत है। तो हम जितनी माएँ मदरसियाँ मौजूद हैं उन सब के लिए बड़ी खुशी की बात कि खुदा ने उन्हें इस लायक को इस काबिल बनाया है। और ये जो औलाद मिलती है इस पर कभी ये फख्र ना करें कि ये मेरी औलाद है, ये कहा करें कि ये खुदा की औलाद है, ये खुदा के बच्चे हैं जो हिकमत से भरी हुई, जो खुदा के कलाम के मुआफिक जिंदगी गुजारने वाली माएँ हैं, वो ऐसे ही करती हैं। सो मेरी दुआ है कि खुदावंद हमेशा हमें ये फजल दे, तौफीक दे कि हमारी माएँ बेदार हो जाएं और हमारे बच्चों की ऐसी परवरिश करें कि वो बूढ़े होकर भी कलाम की राह से कभी ना हटे। एक हवाला और है लेकिन टाइम मुझे इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन बड़ा कमाल का हवाला है। आए थोड़ा सा इसका जिक्र कर लेते हैं। निकाले मेरे साथ मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील। आतर भाई, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका चैप्टर नंबर 15 है, 15 चैप्टर नंबर 15 है और उसकी 21वीं है। ये एक माँ का वाक्य है। सुने माँ अपनी औलाद के लिए कैसा जोर मारती है। देखें ये माँ अपनी बेटी के लिए कैसी फिक्र करती है। जी। फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के इलाका को रवाना हुआ। और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। जी, ये कनानी औरत है। एक मिनट रुकिएगा, ये कनानी औरत है और ये खुदावंद यीशु मसीह के पास आई है और रिक्वेस्ट कर रही है, दरखास्त कर रही है और सिफारिश लेकर आई है अपनी बेटी के लिए कि ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद, बदरू है एक जो मेरी बेटी को क्या करती है, बहुत सताती है। ये है माँ। देखें अब माँ को देखें कैसे ताने सुनने पड़े, माँ को कैसी चीजों को फेस करना पड़ा, लेकिन उसने कहा आज मैं अपनी बेटी के लिए शिफा लेकर जाऊंगी। आमीन। बेटी के लिए शिफा लेकर ही जाऊंगी क्योंकि यही शाफी है, यही शिफा दे सकता है। आमीन। पढ़े आगे। मगर उसने उसे कुछ जवाब, मगर यीशु ने उसे कोई जवाब, सुने जी अब ये बात सुने, वाक्य सुने। यीशु के पास वो आई है अपनी बेटी के लिए, शिफा के लिए, लेकिन यीशु उसे कोई जवाब नहीं दे रहे। आगे। और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की, दरखास्त की कि इसे रुखसत कर दे। और कोई भी जवाब दे दे, इसे रुखसत कर दे क्योंकि ये चला रही है, शोर कर रही है। जी, क्योंकि वो हमारे पीछे चलाती है। उसने जवाब में कहा, यीशु ने ये जवाब दिया कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास भेजा ही नहीं गया। लो जी,
मैं किनानी औरत की नहीं सुन सकता, क्योंकि मुझे भेजा ही इस्राएल के लिए क्या है। नो, यीशु का हर किसी मतलब नहीं, वो तो पूरी दुनिया के लिए आया है। यह बात कुछ और है जी। मगर उसने आकर उसे क्या किया जी? सजदा किया। जब उसने इब्ने दाऊद कहा, जब उसने क्या कहा? इब्ने दाऊद कहा, तो गल नहीं बनी। गल उसने कहा मैं तो इस्राएल के लिए भेजा क्या। लेकिन जब ये बात औरत की समझ में आ गई कि खालिक और मालिक तो एक ही है, पूरी दुनिया को पैदा करने वाला तो एक ही है, उसने उसे सजदा किया और उसे खुदा मान लिया। आमीन। यीशु को सजदा किया और उसे खुदा मान लिया। उसने कहा तू नबी बनकर, पैगंबर बनकर, बेटा बनकर बेशक इस्राएल के लिए आया है, लेकिन निजात खुदा के पास पूरी दुनिया के लिए है। आमीन। तो मैं तुझे सजदा करती हूँ और तुझे खुदावंद मानती हूँ। अब तो तू मेरी बेटी पर क्या कर दे, अब तो तू मेरी बेटी पर क्या कर दे, रहम कर दे। ये माँ है जो अपने बेटी के लिए खुदावंद यीशु मसीह के पास आई है, चला रही है, बातें सुन रही है, लेकिन शिफा उसने कहा मैं आज लेकर ही जाऊंगी। ये है जी माँ का किरदार जी। मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा ऐ खुदावन मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। लो जी, और सख्त लफ्ज़। कोई और मेरा कदी छोटी जी भैन होंगी ना तो मैं नस पा जान के यहो जी गल्लां मैं सुननी पई, मैंने कुत्ता भी बनांदा, बिल्ला भी बनांदा, पता नहीं की पी आंदा तो मैं टुर जाने। लेकिन नो, उसने कहा खालिक यही है, मालिक यही है, रहम यही करेगा, जिंदगी यही देगा। आगे क्या कहते सुन। उसने कहा हाँ खुदावन के कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। आमीन। सारे कहें आमीन। उसने उसे मालिक मान लिया है, उसने उसे खुदावंद मान लिया। उसने कहा हाँ खुदावंद मैं जो कुछ भी हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बुरी हूँ, मैं जो कुछ भी तू मुझे कहे, लेकिन नौकर भी तो उन्हीं मालिकों की मेज से खाते हैं जो टुकड़े गिरते हैं। आमीन। देखिए इस माँ का किरदार, देखिए इस माँ की बेटी के लिए कोशिश, देखिए इस माँ की औलाद के लिए कोशिश कि मैं आज अपनी बेटी के लिए शिफा लेकर ही जाऊंगी। मैं अपनी माँ आप बेटी के लिए शिफा लेकर ही जाऊंगी जी। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है। सारे कहे हालेलुया। इतना कुछ सुनने के बाद, इतना कुछ देखने के बाद यीशु ने उसके अंदर झांका और कहा औरत तेरा ईमान बहुत। उसी वक्त उसकी बेटी ने क्या पाई थी? आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। ये है माँ का किरदार, ये है जी माँ का किरदार अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए। क्या इंसान की किताब में हमने पढ़ा था, दोबारा तरह इंसान की किताब है, वो अपने घराने पर बखूबी निगाह रखती है। क्या रखती है जी? बखूबी निगाह रखती है। इसने बखूबी निगाह रखी और अपनी बेटी की शिफा को यीशु से लेकर गई है जी। आमीन। अपने घराने पर क्या रखती है? बखूबी निगाह रखती है और कायली की रोटी नहीं खाती, शफकत की तालीम देती है और हिकमत की बातें उसके मुंह से। आमीन। गल समझ आ गई? एनी कंफ्यूजन? ये है जी माँ का किरदार। तो हम सारी माओं को खराज तस्लीम पेश करते हैं और सारी माओं को सलूट पेश करते हैं। ऐसी माएं जो अपने बच्चों के लिए जोर मारती हैं, उनकी शिफा के लिए, उनको राह रास्त पर लाने के लिए उनकी तरबियत करती हैं, उन्हें समझाती हैं और उन्हें मसीह के पास लाती हैं। ऐसी माओं के लिए हम उन्हें सलाम पेश करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी में, हमारे घरानों में ऐसी माएँ
اس درد رکھنے والی, بخوبی نگاہ رکھنے والی, شفقت سے چلنے والی, شفقت کی تعلیم دینے والی اور بخوبی نگاہ رکھنے والی ہوں, تاکہ ہمارا ملک, ہمارا شہر, ہماری کمیونٹی ترقی پائے اور مسیح کی پہچان میں بڑھنا شروع کر دے. خدا ہم سب کو برکت دے. God bless you.